ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں وننگ سول اور خدا کے عظیم خادموں کی عظیم باتیں، اچھی باتیں آپ سن رہے ہیں. اور پادری ازکیل صاحب، یس سر، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اور سوال کریں، آپ شاعر بھی ہیں، تو آپ ہمارے ویور کوئی اچھی سی نظم جو آپ کی نئی کوئی نظم ہے وہ سنائیں. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اور سوال کروں. میں پنجابی دی ایک نظم سنانا جی. جی تے او دے اشعار اس طرح نے سر. جی. اسی لب دے رہے خدا نو، سچے مرشد دی درگاہ نو، اسی گردوارے نو چلے، پھر رہ گئے کلم کلے. اسی مندر جا کھلوتے، اسی میلے ہردے توتے، اسی جا وڑے مسیتے، وہ تو ٹھنڈے پانی پیتے. گرجے دیاں ٹلیاں بجیاں، اسی سچیاں راواں ملیاں، اسی اندروں کنڈی لا لی، انہیں باہروں چاتی پا لی. رب آپ ہی سانو لبیا، ساڈا ننگا پنڈا کجیا. یہ اس لیے میں نے لکھی تھی کہ ابن آدم کھوئیوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. بہت زبردست جی، بہت خوبصورت آپ نے نظم لکھی ہے، اور آپ نے بڑے اچھے گیت بھی لکھے ہیں، بڑے اچھی غزلیں بھی لکھی ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ خدا نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا ہے، اور یہ ہر ایک کے پاس پرسب نہیں ہے. یہ بھی اس کا کرم، اس کا رحم، اس کا فضل ہے. پرسب اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ماحول کو، کرسمس کے، اور جب یسوع مسیح پیدا ہوئے اس ماحول کو، اس ماحول کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا کویسچن بہت ہی زبردست ہے جی سر. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کرائسٹ نے جنم لیا جی چرنی میں، بیت لحم کی چرنی میں، جی، بیت لحم کے لفظی معنی ہے روٹی کا گھر، روٹی کا گھر، دا ہاؤس آف بریڈ. پریز دی لارڈ، دا ہاؤس آف بریڈ. ہاں جی، بیت لحم، بیت لحم کے معنی ہے. پریز دی اور لارڈ. بیت لحم جو ہے جی یہ ایک شخص کا نام تھا، جی، افراتا بیت لحم. یہ کالب کی نسلیں تھی، پریز دی لارڈ. اور اس کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے. جی تو بیت لحم یہ وہ جگہ جہاں راخل کی قبر جی موجود ہے. جی تو بیت لحم ہی وہ جگہ جہاں ایک چرچ بنایا تھا 330 اے ڈی میں ملکہ ہلینا نے، جو کنسٹنٹائن رومی کیسر کی والدہ محترمہ تھی. جی، اس نے نیٹیوٹی ایک چرچ بنا رکھا ہے جی، اسی بیت لحم میں جہاں یسوع پیدا ہوا تھا. پریز دی لارڈ. اس کے نیچے ایک غار ہے، جی اس غار کے اندر سینٹ جیروم 30 سال اس میں رہا ہے. جس کے اوپر چرچ بنا ہے نیچے غار ہے، نیچے غار، بیت لحم میں. اس غار کے اندر مقدس سینٹ جیروم رہا ہے، جی، جس نے 30 سال لگا کر یونانی کی پوری بائبل کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا. پریز دی لارڈ، پریز دی یہ لارڈ. بہت امپورٹنٹ سٹی ہے. جی، داؤد کا شہر داؤد کا شہر کہلاتا ہے جی، بیت لحم. بیت لحم. وہاں یسوع کی پیدائش ہوئی. اور اس وقت جی جب یسوع پیدا ہوا تھا، جی آپ جانتے ہیں کہ 3 مجوسی سفر کرتے کرتے جی 2 سال کے اندر اندر جی، یروشلم میں پہنچے تھے. پریز دی لارڈ. یسوع اس وقت بیت لحم میں نہیں تھا جی، جب مجوسی وہاں پہنچے ہیں. جی یسوع اس وقت ناصرت میں ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر میں تھا. جی تو یہ تینوں جب پہنچے یروشلم میں، سارا یروشلم لرز اٹھا. انہوں نے کویسچن کیا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ جی تو پھر اس وقت ہیرودیس لرز اٹھا. اس نے اپنے دونوں بیٹے قتل کروائے تھے. جی، اس لیے قتل کروائے تھے کیونکہ وہ اپنی بادشاہت کو بچانا چاہتا. بچانا چاہتا. پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی قتل کروا دیا تھا، اپنی بادشاہت بچانا چاہتا. اس نے 40 رشتہ دار ریلیٹیوز ان کو بھی جو اس کے اپنے تھے، کہیں یہ نہ میری بات سے چھین لیں، ان کو بھی مروا دیا. تو جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ ان کو 2 سال لگے ہیں سفر کرتے کرتے، تو اس کے ذہن میں آیا، انٹیلیجنٹ بہت تھا، جی ویری کننگ، ہی واز اے ویری کننگ اینڈ سلائلی فیلو. جی، بڑا مکار آدمی تھا. جی، اس نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یسوع تقریباً 2 سال کا ہو چکا ہوگا. لہٰذا اس نے بیت لحم کے ارد و گرد و نواح کے تمام 2 سال کے بچے قتل کروائے تھے. جی، چرنی بھی تھی، بچوں کا لہو بھی تھا. آج بھی کرسمس کے دن ہے، جی، لیکن پشاور میں جو سانحہ ہوا ہے، جی، آرمی پبلک سکول میں جی، بچوں کا لہو بھی موجود ہے. جی. اب اس وقت کے حالات کو جی، آج کے حالات سے جب موازنہ موازنہ کرتے کرتے ہیں، ہیں، بات ایک ہی جا رہی ہے. بات ایک ہی جا رہی ہے. اس کے باوجود بھی جی امید کی شمع جو کرسمس کی شمع ہے، جی، وہ کبھی نہیں بجھی. کبھی نہیں بھی. اس کی روشنی اور اس کی زوردار کرنے
इंसान की रूह में सरायत करती जाती है, Praise the उनके दिलों में उतरती जाती है। Praise the क्रिसमस की रूह इंसान के अंदर सरायत करती जाती है। Amen. अगर कोई ऐसे बुरे, नापाक, घिनौने, नाउमीदियों के जो हालात हैं इनमें जिंदगी पाना चाहता है, अगर क्रिसमस की एक किरण उसके दिल में फूट जाए तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, Praise उसकी जिंदगी बदल जाएगी, Praise the Lord. उसके Praise घर में the Lord. जलाल उतर आएगा। Amen. Amen. ये सिचुएशन जैसे उस वक्त थी जी आज भी है। आज भी है, उस वक्त भी सितारा चमका, सितारा आज भी चमकता जी। है, और वो यीशु है। यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत पारी साहब बताया। यूसुफ साहब आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूंगा कि इन हालात में जी जो हमारे जो अब के हालात कटी हैं। फटी दुनिया है, जी। गुमराह है, जी गुनाह है, कत्ल है, जुल्म है, दहशतगर्दी है और टारगेट किलिंग है, जी इन सब हालात में एक ही हमारी उम्मीद है और वो यीशु मसीह। आमीन, यीशु मसीह। अगर हम आमीन। इसको जान जाएं, जी इसको समझ लें, तो यही हमारी नजात ठहरेगा, रिहाई और खलासी ठहरेगा। प्रेज द तो मेरी तो दुआ है, जिस तरह पादरी हिस्कल सरोज साहब ने जी यह बयान किया है कि उस वक्त के हालात जी और आज के हालात ये मुताबिकत रखते हैं, जी इनकी एक ही शक्ल है, एक ही शक्ल। ये एक ही तरह के हैं। जी जो वाक्या वहां उस जी। वक्त वक्त रुनुमा हुआ। हुए थे, आज भी हो रहे हैं। हो रहे हैं, वैसे जी। ही है। वैसे ही है। शक्लें फर्क है, शक्लें और फर्क। जमाने माहौल फर्क है, लेकिन दौर है वही। फर्क- है वही दौर फर्क है, जमाना फर्क है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन है वो। है वही। है वही सर एक और बात, जी पर सब यीशु मसीह जब जन्मा, जी उसकी विलादत शहादत जी रूनुमा हुई, जी तो फरिश्तों ने जी चरवाहों को कहा था, जी डरो मत। डरो मत। ये दुनिया का ताकतवर मैसेज है जी जो हालेलुया। क्रिसमस के दिनों में आज हम सारी दुनिया को, जी। सारे व्यूअर को, जी। सारे सामाइन को, नाजरीन को, हाजरीन को आइजक टीवी के वसीले दे सकते हैं कि डरो मत, डरो मत, खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे क्योंकि साथ। Glory यीशु to मसीह God. का नाम इमानुएल रखा गया। Emmanuel. इमानुएल के मानी है खुदा हमारे हमारे साथ, साथ। गॉड विद अस, With us. Amen. गॉड विद अस, Amen. खुदा हमारे साथ। तो दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों, नौजवानों और बुजुर्गों, चाहे आप किसी मजहब से, किसी दीन से, किसी मसलक से आपका ताल्लुक हो, यीशु आपसे मोहब्बत करता है। ये यीशु की मोहब्बत है कि वो आपको जिंदगी देना चाहता है, और ये फरमाता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। Amen. डरो मत। और आज भी बेशुमार लोग डरे हुए डरे हुए हैं, और सहमे उनको हुए हैं। डरने की जरूरत हालात नहीं की वजह से। हालात की वजह से। That's right. प्रेज द लॉर्ड। तो पारी साहब आखिर में आप हमें आज बाइबल में से क्या हमारे व्यूवर को मैसेज देना चाहते हैं? क्रिसमस की रोशनी, क्रिसमस है आजकल, और क्रिसमस को बाइबल मुकद्दस की रोशनी में किस तरह समझते हैं, इस पर रोशनी डालें और हमारे व्यूवर को भी इसके बारे में बताएं। सर मैं आपकी विसातत से जी बड़ी इज्जत करते हुए आपकी और आइजक टीवी की रोशनी में ये एक छोटा सा मैसेज सारी दुनिया को देना चाहता हूँ कि इंसान खुदा नहीं बन सकता, लेकिन खुदा इंसान बन सकता है। इसलिए लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ है। कलाम ने जिस्म इख्तियार किया है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा का कलमा यीशु अल मसीहा जो अज़ल से अबद से बाप के साथ है, वो मुजस्सम हुआ है। खुदा इंसान बना है, इंसान खुदा नहीं बन सकता। अब देवताओं के हवाले से लोग कहते हैं जी उतार लेते हैं। उतार लेने से मुराद है एक देवता दूसरे जिस्म में से, एक जिस्म में से निकल के दूसरे में दाखिल हो जाता है और अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है और कई जिस्मों में वो दाखिल होता रहता है। इसको उतार लेना कहते हैं। लेकिन जो मुजस्सम होना है वो डिफरेंट है। मुजस्सम का तसव्वुर और सिर्फ तसव्वुर ही मसीहत में पाया जाता है। यीशु अल मसीह का तजस्सुम होना ये बाइबल में इसका जिक्र हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 1300 से 1500 तक, 1500 तक इन दिनों में जो शरीयत उतरी थी, मूसा ने भी नबूवत की थी। और दुनिया की जो पहली नबूवत थी, फर्स्ट प्रोफेसी ऑफ द बाइबल, इट इज रिटन इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। पैदाइश की किताब उसके
3 बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि तू औरत की नस्ल को काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, तो उसकी एड़ी पे काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। ये दुनिया की पहली नबूवत है। औरत की नस्ल, औरतों से नस्लें नहीं होती, नस्लें मर्दों से चलती हैं, लेकिन यीशु मसीह वाहिद शख्सियत है जो औरत से ज़मीन पर आया था। अब मैं इसका जिक्र किया चाहता हूँ। लूका की मार्फत इंजील है, उसके पहले बाब की 46वीं और 47वीं इन दोनों आयात में मुकद्दसा मरियम ने एक गीत गाया है। उसकी शायरी के बोल सुनिए। लिखा है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मुकद्दसा मरियम के गीत के बोल सुनिए, शायरी सुनिए। मेरी रूह मेरे मुनज्जी, यसू नजात दींदा है, खुदा से खुश हुई। मुकद्दसा मरियम अपने शिकम में मुजस्सम खुदा को लिए आई थी और उसने खुदा को इंट्रोड्यूस करवाया था ज़मीन पर। हम मुकद्दसा मरियम के गीत को कोई मजहब झुटला नहीं सकता। कुरान हकीम में भी मुकद्दसा मरियम को की अजमत को बयान किया गया है। कुरान हकीम में इस इलामी किताब में यह बयान किया गया जो अहले इस्लाम की इलामी किताब है, वहाँ यह बयान किया गया कि इस बच्चे को, ईसा मसीह को शैतान छू नहीं सकता। और मुकद्दसा मरियम जिसका दर्जा बहुत बुलंद है, जिसको फजीलत दी गई है, हम इसको भी याद करते हैं, इन आयात को भी। अब अजीज़ो गौर कीजिए, मुकद्दसा मरियम का गीत कोई मजहब, कोई दीन, कोई अकीदा जुटला नहीं सकता। उसने कहा है कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई है, और ये मुजस्सम खुदा है जो ज़मीन पर उतरा है। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के कोई है नहीं जो हमें गुनाहों से निजात दे सके। हम अंबिया का एहतराम करते हैं, अंबिया असगर हों, अकबर हों, फ़िलिस्तीन से हों, अरबस्तान से हों, किसी भी जगह से हों, सब नबियों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, अब दिल से उनका एहतराम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह की बाबत लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु अल मसीहा मुनज्जी आलमीन है, वो आका है, नामदार है, वो सारी दुनिया को बचाने के लिए ज़मीन पर आया है। और यही हमारा क्रिसमस है। अगर किसी के गुनाह क्षमा हो जाएं, किसी के पाप मिट जाएं, किसी को गुनाहों की जंजीरें उसकी कट जाएं और वो आज़ाद हो जाए, कफस से कोई परिंदा निकलाए और उसके पर निकले और वो उड़ना शुरू हो जाए, फ़ज़ाओं में उसके पर छू ले, तो ये निजात है, ये अब्दी ज़िंदगी है, एटर्नल लाइफ है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और आज मैं आइज़क टीवी की वसातत से और खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की मदद से, पादरी यूसुफ नवाब, उनकी दुआओं के साथ मिलकर आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्रिसमस यही है कि अपनी ज़िंदगी मसीहा के हल्का बगोश कर दीजिए, उसको अपने दिल में, अपने दिल के सिंहासन पर यीशु मसीह को बैठा लीजिए, ताकि वो आपका अजली अब्दी बादशाह बन जाए। मुकद्दस मत्ती रसूल ने यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र किया है, अब मरकज़ ने नहीं किया। ये काबिल गौर बात है, मरकज़ की इंजील में यीशु की पैदाइश का जिक्र नहीं है। अब फिर लूका ने किया है, यूहन्ना ने नहीं किया। ये बातें समझने वाली हैं। और दोस्तों, हम 4 अनाजील नहीं मानते, इंजील एक ही है, लेकिन लिखने वाले 4 हैं, मुसन्निफीन 4 हैं, इंजील एक ही है। और जो एक ही इंजील है उसका नाम यीशु है, यीशु खुद इंजील है। और जो कुछ 4 मुसन्निफीन ने लिखा, इस इंजील जो जिंदा, ताबिंदा, जलाली, मलकूती, आसमानी, कुदरत वाली इंजील है, ला तब्दील इंजील है, वो यीशु मसीह है। उसी के बारे ये बातें हम नए अहदनामा में पढ़ते हैं। उसकी बाबत आप हैरान होंगे, मरकज़ की इंजील में मुकद्दस मरकज़ ने लिखा पहले बाब की पहली आयत में, और लिखता है यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी। मरकज़ रसूल ने इब्ने खुदा कहा है, यानी खुदा का बेटा कहा है। सुनेंगे गौर से, यीशु के बारे लफ्ज़ वल्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वल्द औलाद वालों के लिए होता है, जो औरत और मर्द के मिलाप से पैदा होते हैं, उनके लिए वल्द आएगा, लेकिन यीशु के लिए वल्द लफ्ज़ नहीं आएगा, क्योंकि यीशु कलमा खुदा है और वो रूह कुदस की कुदरत से मुजस्सम हुआ है। जब जब्राइल ने मैसेज दिया ना यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ को, कहा था तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ
ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है, और यूनानी तर्जमा है जो उसके पेट में रखा गया है, पैदा नहीं किया गया, रखा गया है, वो रुल्तुस की कुदरत से है, खुदा की तरफ से है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये कलमा खुदा जो मुजस्सम हुआ है, यही हमारा मुनज्जी है। उसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके सारी उम्मतों और कौमों के लिए कफारा दिया है। आज हमारी दुआ है सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की, हिज कसरोज की, आली जनाब पादरी यूसुफ नवाब साहब की, हमारी दुआ है कि आप यीशु मसीह को कबूल करके अब्दी ज़िंदगी से हमकिनार हों। खुदावंद आपको बरकत दे और सलामती बख्शे। और हमारी सब की तरफ से, आइज़क टीवी वालों की तरफ से, इन अजीज़ों की तरफ से आप सबको क्रिसमस बड़ा दिन मुबारक हो, और नया साल 2015 वो भी आप सबको ढेरों ढेर मुबारक और खुशियाँ लेकर आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पर सब आपने बहुत खूबसूरत शेयर किया है भाई यूसुफ नवाब साहब। मुझे तो बरकत मिली इस सारे मैसेज से, यकीनन आपको भी बरकत मिली है जो पार साहब ने शेयर किया है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप इन तमाम जितने भी भाई या बहनें हमें देख रही हैं, पार साहब आप इनके लिए दुआ करें, खुदा इनको बरकत दे और ये क्रिसमस इनके लिए बाइस बरकत हो और तरक्की का वसीला बने, और नए साल के लिए भी इनके लिए दुआ करें, और ताकि खुदा का फजल हमेशा इनकी आइए अजीजों हम सब दुआ करें, अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखें बड़े एहतराम के साथ रब्बुल आलमीन की हजूरी में बंद करते हुए शुक्रगुजारी से दुआ करते हैं। खुदाए कदूस, खुदाए जुल जलाल, रब्बुल आलमीन तो जो आसमानों और जहानों का खुदा है, तेरी बारगों में सर झुकाकर तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि तू ही परस्तिश, स्ताइश, हमदो सना के लायक है। हम तो गुनहगार थे, बेदीन लोग थे, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, हम गुमराह, गुमगश्ता, भटके हुए लोग, पर तूने यीशु अल मसीह को, कलमा खुदा को, अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा, जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, ताकि हम गुनाहों से, तारीकियों से, जुल्मतों से, इबलीसी कुफ्तों से, शैतानी ताकतों से, गज़बे इलाही से बच जाएं, निजात पाएं और ज़िंदगी पाएं। आज जितने बहन भाई तेरे कलाम को सुन चुके हैं और कबूल कर चुके हैं और यीशु मसीह को अपना दिल दे रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं, पादरी अनवर फजल, पादरी यूसुफ नवाब और मैं, हम मिल करके इन तेरे बेटों और बेटियों के लिए दुआ मांगते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगियां बदल जाए, इनकलाब आ जाए, वो चेंज हो जाए, और ये क्रिसमस, इस साल का क्रिसमस उनके लिए बहुत सी बरकतों का सबब ठहरे, बड़ी जलालत और अजमत का सबब ठहरे, बड़ी आज़ादी और रिहाई, खलासी और मखलसी का सबब ठहरे। तेरा शुक्र करते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में इत्मीनान नहीं है, चैन नहीं है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पर हमारी दुआ है कि जैसा फरिश्तों ने पैगाम दिया था यीशु की विलादत पर, डरो मत कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ, आज हम डरेंगे नहीं, सहमे हुए नहीं रहेंगे, बल्कि हम खुशी की बशारत को कबूल करेंगे। बाप यीशु मसीह के नाम की खातिर सब पर करम फरमा। इसके साथ साथ हम तेरे तीनों खादम मिलके हम उन बीमारियों को झिड़कते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर किस्म की टीबी, दमा, कैंसर, बवासीर, बदरू है, इबलीसी कुफ्त है, यीशु नाम से लोगों को छोड़ जाए। इस इलम में खुदा की कुदरत उनको छू ले और इनके घरों में, इनके दफ्तरों में, इनके कॉलोनियों में, इनकी गलियों में, इनकी दरो दीवार पर, इनके बामोदार पर यीशु मसीह के नाम से मौजे होना शुरू हो जाए, और आज इनका क्रिसमस शिफाओं का क्रिसमस बन जाए, इनका क्रिसमस यीशु के जलाल का क्रिसमस बन जाए, इनका क्रिसमस आज़ादी, खलासी, रिहाई और बरकतों का क्रिसमस बन जाए। हम सारे मिलके दुआ मांगते हैं, पेशावर के सानहा को याद करते हैं जहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में बम ब्लास्टिंग की गई, नन्हे मासूम खूबसूरत फूलों को कुचला गया, प्यारे सितारों को बुझाया गया, कई माओं की गोद उजाड़ दी गई, कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। हम तेरी मिन्नत करते हैं, पेशावर में जो सानहा हुआ, हादसा हुआ, जो टेररिज्म के अटैक्स हुए, हम दुआ देते हैं उन घरों में जहाँ सफ़े मातम बिछी है, उन्हें इत्मीनान दे, सुकून दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें तसल्ली दे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, स्ताइश, तमजीद करते हैं। हम अपने मुल्क के तमाम बहन भाइयों के दुख में, गम में शरीक हैं। हमारी दुआ है कि खुदा कदूस
रब्बुल आलमीन आसमानों से उन्हें इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी अता फरमाए। तेरा शुक्र करते हैं। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी शाफी यसुम सी नासरी के नाम से मांगते हैं। अभी हम खुदाम की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। पाजी यूसुफ बरकत के कलमात भी देंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ कर दे, तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शिराकत और रिफाकत अब से हमेशा तक हमारे साथ होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सर। थैंक यू पर Thank साहब, you, आपने sir. बहुत God bless you, खूबसूरत God bless बयान you. किया। गॉड God ब्लेस bless यू you, पर God साहब, bless you. आपको भी मेरी तरफ से नया साल भी मुबारक और बड़ा दिन भी और क्रिसमस Thank भी you very मुबारक much. भी। Thank you very much. प्रेज द लॉर्ड पर साहब, आपको भी। और वीवर, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। खुदावंद आपके साथ हो, खुशियाँ मनाएं और यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। God bless you. Hallelujah.